Today we are learning about web design, planning and publishing in internet, web and technologies. What we learn in this PPT. First, sitemap of the website design. Second, publishing a website. Overview of sitemap. First, understanding the basis of website planning. Second, role of site in structuring a website. Third, importance of navigation design for user experience. Fourth, step involved in publishing, deploying a website. Fifth, tool used in planning, design and deployment. What is website? A website is a collection of web pages stored on a server and access to the internet using a browser. Example google.com, wikipedia.com. रियल लाइफ एग्जांपल ले तो हम किसी भी ब्राउजर पर जाकर हम एक्सेस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल सर्च करा तो गूगल का इंटरफेस शो होगा, फिर हम वहाँ पर सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करें, फिर हमें वह सर्वर से लाकर पेज शो करेगा. इन विकीपीडिया जस्ट लाइक सेम, हमें wikipedia.org सर्च करना है, फिर उसके बाद हमें वहाँ पे जो भी सर्च करना है, जस्ट लाइक इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, तो हमें इस इंडिया का हिस्ट्री का पूरा पेज लोड करके दे देगा फ्रॉम द सर्वर्स. In simple words, a website is an online place where information, services or content displayed for user. Website planning. Website planning is the process of preparing the structure, content, design and purpose of a website before actually building it. It ensures that the website becomes useful for user, easy to navigate, attractive and functional, suitable for target audience. This planning helps avoid mistake and makes the website professional and effective. First, we have to analyze the data for which user useful for user and partner. We have to find the partner, assets, goals and ambitious competition to compete the current app which is available in the market. Budget, we have to set the budget so we can make the app. CMS, design preferences redesign, ताकि अपडेट पे उसको पता लग सके कि यूजर को किस चीज की नीड है और किस चीज की नहीं, तो उसके हिसाब से हम रीडिजाइन कर सकें. Steps of website planning. First, define goals and audience, gather requirement and content, create sitemap, plan navigation, design layout. In next slide, we learn about define goals and audience in deeply. Goals and audience. The website should be easy to use for all visitors. Every website must begin with clear goals such as providing information, selling product, offering services, branding or promotion. It must look clean, attractive, and match the purpose of the site. The design should be suit the need, age, interest, and the target audience. All influence how the site should look, how easy it should be used, and what content it should be contain. Content should be clear. The website should work well on mobile, template, and computer. And next slide, and content. The step involves collecting everything the website needs before developing begins, include deciding all requirement pages, about, home, services, contact, etc. Listing features such as forms, galleries, search bar, login system, gathering test images, videos, and other material needed for the website. Understanding what information user accept to find on the site. Organize the content in readable and user-friendly way, easy to read. This help create the clear directions for design and development. Create sitemap. List all pages the website we have. Arrange pages in the clear hierarchy. Home section pages. Show how pages are connected to each other. Keep the structure simple so users can find information easily. Use a visual diagram to represent the overall layout to the website. In simple ways, a sitemap acts like a blueprint of a website. It shows all the pages, their hierarchy, how they connect to each other. This helps the developer and designer understand the full structure of the website. Plan navigation and user flow. Navigation planning ensures that user can easily move from one page to another. Decide how user will move from one page to another. It's very important. Amazon में जस्ट लाइक कि हमने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करा, जैसे कि इसमें मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एक जैसे ये अमेजोन की वेबसाइट है, इसके अंदर यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करा तो उसी के बाद वो कौन सी वेबसाइट ओपन करता है उस प्रोडक्ट की डिटेल्स या फिर प्रॉपर तरीके से शो करने के लिए. क्लियर menus, top menu, sidebar, footer. Keep navigation simple and easy to understand. Ensure important pages are reachable in 1-2 clicks. Define design user flows so visitors can find information quickly.
क्रिएट क्लियर मेन्यूज। जैसे कि एक वेबसाइट है, उसके हमें प्रॉपर मेन्यूज बनानी पड़ेगी, उसका हेडर, उसके मेन्यूज, उसके प्रॉपर साइड बार्स कैसे वर्क करता है, थ्री लाइंस टाइप, फिर उसके बाद फुटर, उसके बाद कीप नेविगेशन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये पूरा जो लेआउट है पूरी तरीके से इजी होना चाहिए ताकि यूजर उससे प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट कर सके। फिर उसके बाद डिजाइन स्मूथ यूजर फ्लो सो विजिटर्स कैन फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सही साट तरीके से शो करना चाहिए ताकि यूज़र उसको प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से उसको एक्सेस कर सकें और उसको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। डिजाइन लेआउट। डिसाइड वेयर मेन एलिमेंट्स लाइक हेडर, मेन्यू, कंटेंट एंड फुटर विल अपीयर। जैसे कि पिछली स्लाइड में बात करा था कि एक वेबसाइट का प्रॉपर तरीके से उसका हेडर होना चाहिए, उसके मेन्यू होना चाहिए, उसका नेव, उसका बार होना चाहिए, साइड बार, फिर उसके बाद उसका कंटेंट क्या क्या शो हो रहा है, और उसके बाद उसका फुटर कहाँ कहाँ पे अपेयर होना चाहिए। फिर उसका सिंपल वायर फ्रेम्स शो द प्लेसमेंट टेक्स्ट एंड इमेजेस। जो टेक्स्ट वहाँ पे जो लिख रखा है उसका एक प्रॉपर तरीके से एक फ़ॉन्ट होना चाहिए, जो इमेजेस शो हो रहे हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं कुछ ग्लिच तो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। फिर यूज़ क्लीन स्पेसिंग, एडेबल फ़ॉन्ट्स एंड कंसिस्ट फॉर कलर थीम। एक कलर थीम बेस्ट रखना चाहिए, जैसे कि मैंने इसकी कलर थीम पिंक और ब्लू रख रखी है, तो एक ईजी तरीके से इस पर शो कर सकते हैं। उसी तरह हमें वेबसाइट का भी एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर थीम रखना चाहिए। मेक श्योर द लेआउट वर्क्स वेल ऑन मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन्स। आगे वाली स्लाइड के अंदर मैंने ये भी प्रॉपर तरीके से शो करा है एग्जाम्पल के थ्रू। कीप द ओवरऑल डिजाइन नीट, बैलेंस्ड एंड इजी यूजर्स टू फॉलो। एक नीट और क्लीन होना चाहिए कि यूजर्स को फॉलो कर सके। जैसा मैंने कहा था, मैंने एग्जांपल लिया है कि फ़ोन के अंदर प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है एक वेबसाइट, और लैपटॉप के अंदर भी प्रॉपर तरीके से शो हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना पब्लिशिंग अ वेबसाइट। व्हेन पब्लिशिंग द वेबसाइट, चेक दैट इट वर्क प्रॉपर्ली ऑन द both modes and laptop by testing it layout, buttons and pages on different screen sizes. Ensure the smooth, consistent user experience across all those devices. जैसे फ़ोन के अंदर प्रॉपर तरीके से सारे बटन्स, सारे इमेजेस और प्रोडक्ट जो भी शो हो रहा है वो वर्क कर रहा है, और सेम डेट इज़ वर्क ऑन लैपटॉप, कि प्रॉपर तरीके से वो सारे प्रोडक्ट्स वर्क कर रहे हैं और नए बार प्रॉपर वर्क कर रहा हो। पब्लिश अ वेबसाइट। First step, establish the basis. Second step, test the website. Third step, buy a domain. Fourth step, manage your website. Fifth step, make it live. इन सारी स्टेप्स को डीपली हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Establish the basis. Define website purposes. Decide why the website is being created, what it should achieve. This helps set clear goals for design, content and functionally. वेबसाइट पहले सबसे पहले तो फिक्स करना है कि किस चीज़ के लिए हमें बना रहे हैं, ई कॉमर्स या फिर बिजनेस या फिर पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई टारगेटेड ऑडियंस। अगर हम बिजनेस बना रहे हैं तो हमारे क्लाइंट को पूरी तरीके से टारगेट करना है, उनके बारे में रिसर्च करना है, और करंट अवेलेबल है उसके बारे में चेक करके हमें प्रॉपर तरीके से काम करना है। जैसे इसमें लिखा ही अंडरस्टैंड हु विल यूज द वेबसाइट, व्हाट इन्फॉर्मेशन द एक्सेप्ट, दिस इंश्योर द वेबसाइट इज डिजाइन टू मैच देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। सिलेक्ट वेबसाइट टाइप, choose what kind of website you need, such as portfolio, business site, blogs, e-commerce store. जैसे पोर्टफोलियो जो स्टूडेंट नॉर्मल बनाते हैं अपने रिज्यूम के लिए, और बिजनेस साइट्स ताकि हम क्लाइंट्स प्रॉपर कनेक्ट हो जाए, ई कॉमर्स ताकि हम प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें। दिस हेल्प डिसाइड द लेआउट, फीचर्स एंड टूल्स रिक्वायर्ड। डोमेन। डोमेन इज अ वेबसाइट नेम लाइक amazon.com। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा है, मैंने एक डोमेन की वेबसाइट सर्च करी जहाँ से डोमेन खरीदा जा सकता है, ओनली डोमेन्स। यहाँ पे amazon.com का सर्च करा, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, ताकि वो पूरा डोमेन खरीद के रख सके ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। योर परचेज फ्रॉम द डोमेन प्रोवाइडर, सो योर वेबसाइट हैड यूनिक नेम एंड आइडेंटिटी ऑनलाइन, ताकि पूरी तरह से ऑनलाइन वेबसाइट, जैसे यहाँ पे जो वेबसाइट चल रही है वो चल रही है वो हमारी यूनिक नेम के हिसाब से। और यहाँ पे और अवेलेबल्स रहते हैं, अगर ना मिले तो उसको अपन चेकआउट कर सकते हैं, और फिर बाय करके हम उसके ऊपर फाइल अपलोड करके हमारा काम चालू कर सकते हैं। द वेबसाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस ऑफ द पब्लिशिंग वेबसाइट, क्योंकि अगर हम बिना टेस्ट करे अगर हमने वेबसाइट को पब्लिश कर दिया तो बहुत सारे बग्स या फिर यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा, तो यूज़र फिर उस वेबसाइट से दूर जाकर कोई अल्टरनेट ढूंढेंगे, जैसे हमारा ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। दैट्स द पॉइंट। फिर उसके बाद चेक, check all pages links, make sure every page is open properly and all link buttons forms work without error.
जैसा कि हमारी एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक लिंक है, कुछ भी मान लो गूगल की, अगर वो लिंक के पीछे अगर एचआरईएफ मतलब जो भी कोडिंग का सिस्टम वर्क होता है, अगर प्रॉपर नहीं हो और हम उस वाले पेज पे नहीं पहुंच पाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ये भी चेक करना है। फिर उसके बाद टेस्ट ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, ओपन द वेबसाइट ऑन मोबाइल, टेबलेट, कंप्यूटर टू इंश्योर इट लुक करेक्ट एंड फंक्शन स्मूथली एवरीवेयर। जो वेबसाइट है ये प्रॉपर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मोबाइल की स्क्रीन पे वर्क करे नहीं करे, वो एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें वेरीफाई करना है, verify browser compatibility. Test the site on Chrome, Firefox, Edge, Safari to ensure it performs well on the major browsers. अगर वेबसाइट का वेब प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो तो हमें ब्राउजर्स पे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐप तो हम चेक कर सकते हैं डिफरेंट फ़ोन्स के ऊपर, और ब्राउज़र के ऊपर भी चेक करना है वेबसाइट। जैसे कि अमेज़न का एक ऐप भी है, बट हमें फ़ोन के अंदर उसे एक्सेस कर सके हैं ब्राउज़र के ऊपर, और फिर उसके बाद वो फायरफॉक्स, एज, सफारी और क्रोम हर जगह पे प्रॉपर वर्क करना चाहिए। Make it live. After testing, publish the website by connecting your domain to host and upload all files. जैसा मैंने पहले बताया था कि हमें डोमेन बाय करना है, जैसे कि मान लो gogoid.in नाम का खरीदा है डोमेन, फिर उसके अंदर हमें सारी वेबसाइट का डाटा, सारी फाइल्स सब डालकर उसे लाइव कर देना है। फिर इंश्योर एवरीथिंग लोड्स करेक्टली ऑनलाइन, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल यूजर्स। फिर हमें चेक करना है कि ये वेबसाइट सारे यूजर्स के लिए चल रही है या फिर नहीं। फिर उसके बाद वंस लाइव कीप मॉनिटरिंग ऑन द वेबसाइट एंड इश्यूज द अपडेट नीडेड। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। बट मैनेज योर वेबसाइट, update content regularly, keep text, images, and information fresh makes the website more engaging and useful for visitors. विजिटर्स के लिए तो हमने वेबसाइट बनाई है, तो हमें प्रॉपर उसका कंटेंट रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। उसके बाद मॉनिटर परफॉर्मेंस, चेक वेबसाइट स्पीड, ट्रैफिक एंड एडजस्ट टू इंश्योर एवरीथिंग वर्क स्मूथ फॉर यूजर। अगर ओवरऑल वेबसाइट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो जितने भी यूज़र्स हैं उनका रीच हमेशा बढ़ेगा, और अगर स्मूथ वर्क नहीं कर रही है तो वो कम होता जाएगा। इसीलिए हमें परफॉर्मेंस का चेक करता रहना है, स्पीड चेक करनी है, ट्रैफिक चेक करना है उसका, ताकि ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद एरर्स को सोल्व करना है और स्मूथ यूजर्स के लिए वर्क करें। मेंटेन सिक्योरिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई भी हैकर कोई बग छोड़ के उस साइट को डाउन करता है या फिर क्रैश कर देता है या फिर यूजर्स का डाटा ले जाता है, तो डेट्स अ मेन प्रॉब्लम, डेट्स अ मेन प्रॉब्लम। अगर हैकर वो जाकर डाटा सब ले जाता है तो हैकर कुछ भी कर सकता है उस डाटा के थ्रू। तो इस कारण से हमें उस डाटा को सिक्योर करने के लिए हमें सिक्योरिटी अपडेट्स हर बार देने पड़ेंगे, कि वो इंश्योर रहे कि यूजर्स का डाटा प्रॉपर तरीके से बचा रहेगा। जैसे इसमें लिखा ही है, इंस्टॉल अपडेट्स एंड सिक्योरिटी टूल्स टू प्रोटेक्ट द वेबसाइट फ्रॉम द बग्स, attacks or data loss. A well-managed website stays relevant and reliable. Right. मेरी पूरी स्लाइड्स देखने के लिए, ये आपको हेल्प करेगा वेबसाइट को प्लान करने के लिए और उसको किस टाइप से पब्लिश करने के लिए। थैंक यू।